So hello everyone. Now we are going to start the new asexual reproduction और इसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया या रूट स्टेम लीव्स या फिर फ्रूट से, ठीक है, या लीफ से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अंडरस्टूड व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? Everyone, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so definition is given over here. The definition says, here we have the definition. Definition says vegetative propagation occurs through the stem. Okay, when a new plant arises from the nodes. See, if we will discuss example of sugarcane. So you know sugarcane, it looks like this. Wait a second, let me draw the picture for sugarcane. See, here we have the sugarcane, and sugarcane contain nodes. There are many nodes. Okay, these are the nodal region. Okay, on the node, birds are present over here. The small bird you will find over here. Okay, and from these bird, new plants is growing. Means the new plant of the sugarcane grows from the nodal region of the sugarcane. That means that new plant is growing from the vegetative part called stem. Is it or not? Is Yes, it? sir. Yes. In case of potato, you will find in case of potato, here we have potato. Here we have potato. So in potato, you will find eyes-like structure. So from eyes-like structure, new plants are being germinated from there. Means again, the formation of new plant from the vegetative part, and potato is nothing but the root of the plant. We have ginger, we have sweet potato, we have onion. Okay, there are many examples. If you see the leaf of the bryophyllum, you know the bryophyllum plant, मोस्ट ऑफ द होम्स, बहुत सारे घरों में एज अ शोकेस वो प्लांट को सजा कर रखते हैं. वो ऐसा होता है उसका लीफ. उसके लीफ के मार्जिन में बेटा ऐसे बर्ड्स होते हैं. ओके, ऐसे बर्ड्स होते हैं ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन में. ठीक है, और जब ब्रायोफाइलम की लीफ मेच्योर हो जाती है, इनफ मेच्योर हो जाती है, तो इसके जो बर्ड्स में से यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, व्हेन दिस लीफ फॉल्स ऑन द सरफेस मीन सॉइल, तो यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये भी वेजिटेटिव पार्ट क्या है हमारा? लीफ. सो लीफ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. सो इट इज अगेन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so now I am going to write definition according to the Hemant sir. यहाँ पर जो दिया है theoretical, but I am going to write definition over here. Okay, so definition I am writing at the bottom. Okay, when new plant, when, so देखो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से बेटा? वेजिटेटिव पार्ट है हमारे पास रूट, देन वी हैव स्टेम, देन वी हैव रूट स्टेम एंड लीव्स. ओके, जो ये पोटैटो है, जिंजर, ये ट्यूबर रूट है, बट ये भी रूट के ही टाइप्स है. ठीक है, सो ये हो गया बेटा वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है, सो डेफिनेशन में हम लिखेंगे, तीनों पार्ट को हम यूज करेंगे. व्हेन, क्या हो जाएगा? व्हेन, let me change the ink color. When new plant is growing from vegetative parts of the plant, from vegetative parts of the plant, like, देखो कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट है? रूट, स्टेम एंड लीव्स. लाइक रूट, कॉमा, स्टेम एंड लीव्स. Okay, is called as
called as vegetative propagation. Vegetative propagation. ओके अब एग्जाम्पल, अब देखो बेटा एग्जाम्पल हमारे पास पिक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, हम उसमें से कुछ लिख लेंगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है। फिर हो गया सुगर केन, हम इसको केन सुगर भी लिखते हैं, केन सुगर, ठीक है। फिर पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एक्सेट्रा। Okay, so there are many examples we have here which produces new plant from the vegetative part of the plant itself. Okay, that's why it is called as beta vegetative propagation, and it is the asexual type of reproduction because there is no like fusion of male and female gamete takes place here. That's why it is asexual type of reproduction. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt beta here? No, No, sir. sir. दिस इज ब्रायोफाइलम प्लांट। ये जनरली हम घरों में, घरों को सजाने के लिए, हमारे गार्डन को सजाने के लिए हम बेटा इसका यूज करते हैं। सो देखो ब्रायोफाइलम ये प्लांट है, इट इज ब्रायोफाइलम, BRYOPHYLUM। अब इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में हम पानफुटी कहते हैं, ठीक है। पान का मतलब होता है लीफ और फुटी का मतलब होता है वो जो मार्जिन है। यहाँ पर देखो ये मार्जिन दिख रही है, लीफ के मार्जिन में बर्ड्स है, बर्ड नहीं यानी कटा हुआ पार्ट है, और वहीं से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोकल लैंग्वेज में मराठी में इसको पानफुटी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्रायोफाइलम प्लांट। जब ये मेच्योर हो जाता है ना, इनफ मेच्योर हो जाता है, तो ये जो मार्जिनल एरिया दिख रहा है, मार्जिन में जो आपको वो कटा हुआ रीजन दिख रहा है, यहीं से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये फिर रूट, अभी देखो शूट निकलना शुरू हो गया यहाँ से, ये न्यू प्लांट है, ये न्यू प्लांट है ब्रायोफाइलम का, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो कैसा, ये प्लांट की लीफ या तो टूटेगी या फिर ये यहीं से डिटैच होकर अर्थ सरफेस पर गिरेंगे और वहीं से उनका जर्मिनेशन है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्रायोफाइलम, हाउ इट इज गोइंग टू बी reproduce with the help of vegetative part like leaf. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, everyone, this is the potato beta, potato आलू जो हम खाते हैं। okay, so see ये है potatoes, I'm writing here. okay, so potato में देखो ये आई के समान स्ट्रक्चर होता है, हम उसको पोटैटो आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटैटो आई लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी पोटैटो से जर्मिनेशन होता है बेटा बर्ड का, बर्ड का। ओके, जब बर्ड में सेल डिवीजन होता है, तो जब सेल डिवीजन होने के बाद ये न्यू रूट और शूट को फॉर्मेशन करता है। जैसे शूट निकल रहा है तो यहाँ से रूट भी निकलेगी, ठीक है, और ये न्यू पोटैटो के प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। okay, so this is the way how vegetative propagation takes place in potato. Understood? Yes, sir. Yes, okay. Yes, So, sir. you take a screenshot for that also. This is the ginger beta, ये ginger है that we are using, you know, it is again have medicinal use. जिंजर जनरली कफ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और इसमें एक मटेरियल होता है जिंजरलिन जो इसके फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यू नो जिंजर हैव द डिफरेंट फ्लेवर, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं स्पाइसेस मसालों में, हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, sir. तो जिंजर Yes. में, जिंजर में भी ऐसे बर्ड्स होते हैं, देखो बर्ड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो देखो ये बर्ड है, यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गया उसका नोडल रीजन, और देखो नोडल रीजन के नीचे से रूट्स भी निकलती है, तो रूट डायरेक्टली अटैच होती है किससे? इस न्यू प्लांट से, और फिर न्यू जिंजर के प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ जिंजर इज रिप्रोड्यूसिंग with the help of vegetative propagation. Okay, so I want you again take a screenshot for that.